Hello students, have a nice day. In this video, I would like to explain the second poem for 12th class. Yesterday I have explained first poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Stephen Spender is the poet of this poem. Stephen Spender was an English poet and essayist he left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1913. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and a autobiography, Bird Within Bird, in an elementary school classroom in a slum. He has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities. Stephen Spender has presented a true picture of the life of the school children living in the slum of Tireless Valley of Holstein Alpine province. The children are in a very miserable condition due to their poverty and illiteracy. They are depressed. Their pale faces express sadness. They look lean, sinky, and bony. They are like rootless weeds which cannot resist anything for the existence. They are physically very weak and undernourished. Spender voices have concern for the children who live all their life in a slum and have no opportunity to enjoy the real blessing of life. He makes a frantic appeal to the uneducated and affluent sections of the society to better the lot of the slum children through education. If we provide education to a child, then I think that we are giving him the whole wealth of the world. The child who is educated, he will pass his life in the best way. Far from gusty waves of these children faces, अर्थात बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, अर्थात जो बच्चों के चेहरे हैं इन झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं. लाइक रूटलेस बीड्स, जैसे जड़ से उखड़ी हुई जंगल की घास. छोटा बच्चा होता है, उसके बाल बिखरते हैं, घुंघराले बाल बिखरते हैं, लंबे भी होते हैं. लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर, अर्थात जैसे जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास, ठीक उसी प्रकार उनके बाल हैं, उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए पड़े हुए हैं. द टाल गर्ल विथ हर वेस्ट डाउन हेड, लंबी लड़की अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए बैठी है, अर्थात सर ऐसे नीचे की हुए बैठी हुई है. द पेपर सेमिंग बॉय, द बॉय हु अपीयर्स लाइक ए पेपर. It can be said that perhaps his picture is on the paper. कागज जैसे दिखने वाले लड़की की आँखें, सेमिंग बॉय विथ द पेपर सेमिंग बॉय विथ रैट्स आई, अर्थात कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आँखें चूहे की आँखों जैसी हैं, लाइक रैट्स आई. द स्टंट अनलकी हेयर अविकसित, द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अविकसित विकृत हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी. रिसाइटिंग फादर्स नॉलेज डिसीज, अर्थात अविकसित विकृत हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी पिता की बीमारी को दोहराते हुए अपने पढ़ने के मेज पर बैठ करके पाठ पढ़ रहा है. ये बहुत बड़ी विडंबना है. हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं. अर्थात द बॉय हु इज रीडिंग, हु इज completing his lesson, and his father is suffering from great disease and he is sitting beside him. His lesson from his desk, अपने पढ़ने वाली मेज के पास बैठ करके.
at back of this dim class, at back of the dim class, जो धुंधली कक्षा है उसके ठीक पीछे, वन अननोटेड, नोटेड अर्थात जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, अननोटेड अर्थात जो बच्चे पर, जिस बच्चे पर टीचर ध्यान नहीं दे पा रहा है, अर्थात धुंधली कक्षा के पीछे एक उपेक्षित स्वीट एंड यंग, प्यारा और छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। उसके आंखें स्वप्न देखती हैं। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, हिज आइज ड्रीम्स, हिज आइज वॉचेज ए ड्रीम, उसके आंखें स्वप्न देखती हैं। और स्वप्न क्या है? ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरी के खेल का। छोटा बच्चा कभी पढ़ने की बात नहीं करता है, छोटा बच्चा बात ही कुछ इधर उधर की करता है। गिलहरी के खेल का, गेम्स इन रूम, गेम इन ट्री रूम, अर्थात जो गिलहरी का खोखला होता है, गिलहरी का घर होता है पेड़ पे, उसके बारे में सपना देखता है। पेड़ के खोखले में सबसे हट करते अर्थ अदर देन दिस, अर्थात ही डज नॉट थिंक अबाउट द क्लास, वह कक्षा के बारे में नहीं, सो व्हाट एवर टीचर इज टीचिंग he does not pay any kind of attention, because a bird has come above in above lines unnoted, sweet and young, अर्थात he is the boy जिस पर टीचर का कोई भी ध्यान नहीं है। On sour cream walls, donations Shakespeare's head, cloudless at dawn civilized, dome riding all cities। हमारी जब दीवालों में सीलन पड़ती है, खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारें, खट्टे भद्दे पीले मक्खन जैसी जो दीवारें हैं, और उन पर है क्या? डोनेशंस, अर्थात जो चीज़ हमें दान पे प्राप्त हुई है वो चीज़ें। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का सिर, शेक्सपियर का चित्र लटक रहा है, की तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित भोर है, ऐसी भी कोई तस्वीर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, समस्त शहरों के मार्गों को दिखाती हुई सभ्य गुम्मद की तस्वीर है। अर्थात मंदिर इसलिए बनाए जाते थे, चौराहों पर मंदिर होते थे, और भी सारी चीज़ें, गिरजाघर होते थे कि वहाँ पर वो गली है, वहाँ पर ऐसा लोग पहुँचेंगे। तो समस्त शहरों को पथ को दिखाती सभ्य गुम्मद की तस्वीरें। बैलेड फ्लावरी ट्रायलोस वैली, अर्थात घाटी नुमा फूलों वाली ट्रायलोस घाटी, उसकी तस्वीर। ओपन हैंडेड मैप, मुक्त हस्त से खुला हुआ नक्शा, उसकी तस्वीर। एवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, नक्शा संसार को संसार से परिचित करवा रहा है। एंड येट फॉर दो चिल्ड्रेन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, येट फॉर दो चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप, कोई नक्शा नहीं है, देयर वर्ल्ड, ये उनका संसार है। नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड, उनका संसार है। वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, और इस खिड़कियों वाला संसार है जहाँ पर उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे से पुता हुआ है। वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, अर्थात जहाँ पर उनका पूरा भविष्य कोहरे से पुता हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक संकीर्ण गली जो नीले, स्ट्रीट सील्ड विथ ए लीड स्काई, एक संकीर्ण गली जो नीले शीशे के रंग के समान आसमान से बंद की हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार फ्रॉम रिवर्स, अर्थात केव्स एंड स्टोर्स ऑफ द वर्ल्ड, नदियों, अंतरीपों और शब्दों के तारों से बहुत दूर है। वे बच्चा दुनिया के झंझावातों से बहुत दूर है। Surely Shakespeare is wicked. Next passage I would like to stanza clear. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. निश्चित ही शेक्सपियर घृणास्पद है, बहुत विचित्र है, दुष्ट है। नक्शा एक पूरा अप्रिय उदाहरण है।
जहाँ एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन, जहाज़ों और सूर्यों के साथ, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और तथा प्रेम उन्हें, जो प्रेम होता है उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। फॉर लाइफ्स दैट स्ली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, उन जिंदगियों के लिए जो धूर्तापूर्वक अपनी तंग खोलियों, तंग बिलों पर में जाती हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनके जो बेकार चीज़ों के ढेर हैं ये बच्चे, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन दियर स्लैग हेप दियर चिल्ड्रन, जो ये बच्चे हैं हड्डियां झाँकते ही खालों के त्वचा के पहने हुए हैं। जब बच्चा स्वस्थ नहीं होता, कमज़ोर होता है, कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, उसके हड्डियों पर लगता है कि चमड़ी को पहना दिया गया है, ढाल दिया गया है। उसी प्रकार अंदर स्लेग हेप, उन बेकार की वस्तुओं पे ढेर पर दियर चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन, बच्चे बियर स्किन पीप्ड, ऐसा लगता है कि त्वचा को पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रू द बोन्स, अर्थात कमजोरी कर हड्डियों की छपी नजर आती है। पीप्ड थ्रू द बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इनके चश्मों के फ्रेम में टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगे हैं। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विच मेंडेड ग्लास, अर्थात जिनके चश्मों के शीशे हैं वो मेंडेड रिपेयर्ड करके लगे हुए हैं। लाइक बोटल बिट्स स्टोन, जैसे पत्थरों पर शीशों के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम, उनका सारा समय और विस्तार कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज टोम, अतः उनके नक्शे के साथ उनकी गंदी बस्तियों को, जैसे प्रलय बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देता है, वैसे ही उसे सो ब्लॉट दियर मैप्स, उसे मिटा दो उनके नक्शे को, विथ स्लम एज बिग एज डोम, जैसे कि प्रलय बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है, वैसे ही उनके कष्टों को, समस्याओं को मिटा दो और सब खत्म कर दो। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विस्टर, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज, अनलेस, जब तक कि राज्यपाल दरोगा आगंतुक ना आ जाएं, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, ये नक्शा उनकी खिड़की है, बिकम्स खिड़की हो जाता है, एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियाँ, दैट सेट अपॉन दियर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, और ये जो खिड़कियाँ जो उनके जीवनों को कब्रगाह की तरह बंद कर देती हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ो और तोड़ो, खोल दो जब तक कि वे कस्बे को तोड़ ना दें। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ो ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक वे, और खोलो जब तक वो कस्बे को तोड़ ना दें। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों के हरे भरे मैदान, एंड सो द ग्रीन फील्ड्स, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन, और बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ड, उनका संसार स्वर्णिम बनाओ, एंड मेक दियर वर्ड, उनके संसार को स्वर्णिम बनाओ। रेन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, बालू पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए। एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी जीभों को पुस्तकों के अंदर पर वस्त्र रहित दौड़ने दो। एंड लेट दियर टंग्स रेन नेकेड इनटू बुक्स विथ वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, तथा हरी भरी पत्तियों खुले वातावरण में रहकर उन्हें इतिहास बनाने दो, क्योंकि इतिहास प्राकृतिक नेचुरल कंडीशन पर बनता है, बनावटी स्थिति पर तो केवल जीवन कटता है। हिस्ट्री एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, अर्थात रहकर इतिहास बनाने दो, जिनकी भाषा हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान है, अर्थात जिसकी भाषा में सूर्य जैसी उष्मा तथा तेज हो, और अपने जीवन में सफल होकर कुछ इतिहास रच सकें। मैंने सुना है, माई टीचर हैव आल्सो टोल्ड मी, द मैन हु बिकम्स एंग्री टू यू, वह व्यक्ति जो आपसे नाराज होता है, निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ सोचता है,
और जो व्यक्ति मुस्कुरा कर चला जाता है निश्चित तौर पर आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। यू कैन से दैट ही हेट्स यू। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।